Hello students, welcome to my YouTube channel. In our chapter of disease management, plant disease management, I have explained you about the principle of disease management, then physical methods and cultural practices for the plant disease management. Now in today's chapter, I am going to tell you about the chemical control or chemical treatment for the plant disease management. So let's start it. Chemical control of plant diseases. Use of chemical compounds is one of the most commonly applied means for plant disease management. The stability and security of food supplies in the world is due to the part to the success of this strategy. Means जो mainly control of disease है, that is based on the chemical control or the chemical methods. The chemical compounds are used to control plant diseases in the field and in the greenhouses and sometimes in the storage also. Such chemicals are toxic to pathogen and either inhibit germination, growth and multiplication of the pathogen or outright lethal to the pathogen. That means ये जो भी chemicals हम apply करते हैं for the control of the diseases, वो pathogen की growth को check कर देते हैं different ways से या अलग अलग तरीकों से. Depending on the kind of pathogen they affect, the chemicals or फंजीसाइड्स दैट मीन्स जो कि फंगस के ऊपर काम करते हैं या फंगस को किल करते हैं, देन बैक्टीरियासाइड, निमेटिसाइड्स, वायरसाइड्स और द पैरासाइट हायर प्लांट्स और फिर हर्बिसाइड्स जो कि हम वीड्स को जो कि हायर जो पैरासिटिक हायर प्लांट्स हैं उनको किल करने के लिए काम में लेते हैं. ओके जो केमिकल कंट्रोल है, केमिकल्स वो तीन तरह के होते हैं. एक तो होता है प्रोटेक्टेंट केमिकल, दूसरा है इरेडिकेंट केमिकल एंड देन है कीमोथेराप्यूटेंट्स. तो ये क्या होते हैं जो स्टार्टिंग के अंदर इन द पास्ट जो प्रायर 1960 से हम पहले की बात करें तो द केमिकल्स अप्लाइड ऑन प्लांट्स और प्लांट ऑर्गन्स ओनली प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड एंड डिड नॉट स्टॉप और क्योर अ डिजीज आफ्टर इट हैड स्टार्टेड. मतलब पहले जो हमारे पास केमिकल्स अवेलेबल थे वो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करते थे प्लांट को, पर यदि एक बार डिजीज स्टार्ट हो गई तो फिर वो उसको चेक नहीं कर पाते थे. These chemicals are protective in action और इनको हम कहते हैं protectant and majority of them are effective only in the plant area to which they have been applied. मतलब जो protectant chemicals हैं उनका जो action है वो क्या है, localized होता था and they are not absorbed or translocated by the plant. Suppose हमने leaf पे लगाया या stem पे लगाया तो वो उस area में ही localized होगा, वो absorb करके उन chemicals को plant उनको अलग अपने और organs की तरफ या और parts की तरफ उसको ट्रांसलोकेशन नहीं होगा. The real breakthrough come in 1960 and onwards when many new chemicals were developed that showed therapeutic, that is eradicant action and were absorbed and translocated through tissue inside the plant. जैसे कि सिस्टेमिक फंजीसाइड्स इंट्रोड्यूस हुई या इरेडिकेंट केमिकल्स इंट्रोड्यूस हुए, एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस हुई. ओके, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस, केमिकल्स जो भी होते हैं उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. या तो हम उनको सॉल्यूशन बनाकर जो भी गिवन सॉल्यूशन है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन का बनाना स्प्रे करते हैं, या फिर कोई पाउडर है तो डस्टिंग करते हैं, या फिर उससे हम फ्यूमिगेशन करते हैं. देन मेरिट्स ऑफ स्प्रेइंग, यदि हम स्प्रेइंग करते हैं तो उसके क्या मेरिट्स होंगे. लेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर यूनिट, good coverage or deposition, residual effect for more, can spray in high wind velocity, drop size can adjust, better utilization of chemical and can reduce drift loss. The demerits क्या हैं spraying की, more time and labor, sprayers are heavy, sprayers are costly, have to prepare before use, storage problem, no spraying in moist weather. तो ये कुछ spraying की merits और demerits हैं. चलिए अब सीड ट्रीटमेंट्स किस तरह से देते हैं. तो सीड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं इंटरनली सीड बॉर्न डिजीजेस के लिए. जो सीड डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो मेनली इंटरनली सीड बॉर्न के लिए, एग्जांपल है विटावैक्स या कार्बेडाजिम. देन सीड डिसइंफेक्टेंट्स एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीजेस के लिए कॉपर कार्बोनेट. देन सीड प्रोटेक्टेंट्स क्या होंगे, ये सॉइल बॉर्न पैथोजेंस के लिए, एग्जांपल थीराम एंड कैप्टन. मेथड्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट, ड्राई सीड ड्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ड्राई सीड्स पर उनको ट्रीट किया जाता है. देन स्लरी ट्रीटमेंट, सीड डिप मेथड एंड प्लांटर हॉपर बॉक्स सीड ट्रीटमेंट.
मेथड्स ऑफ सॉइल ट्रीटमेंट, तो पहला स्प्रेइंग हो गई अपनी, फिर सीड ट्रीटमेंट्स हो गया। अब सॉइल ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल ड्रेंचिंग, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डस्ट पाउडर और ग्रेन्यूल्स, फरो एप्लीकेशंस, स्पॉट एप्लीकेशंस, स्ट्रिप एप्लीकेशन, पिट्स एप्लीकेशन, प्लांटेशन साइट एप्लीकेशंस। तो अलग अलग तरह से हम सॉइल को ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फंजीसाइड से, कि फंजीसाइड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनको हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चंस में भी आ जाता है इस टाइप ऑफ फंजीसाइड के बारे में बताइए, तो एटलीस्ट आप उनके नाम ज़रूर याद रखिए और वो किस डिजीज़ पर काम आते हैं। तो फंजीसाइड्स, फंगस प्लस कैडियो टू किल, ये एक लैटिन वर्ड है। फंजीसाइड हैज़ बीन डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस विच हैज़ द एबिलिटी टू प्रिवेंट डैमेज caused by the fungi to growing crops and their products. Classification of fungicides on the basis of chemical nature. अब chemical nature की basis पे fungicides को हम किस तरह से classify करते हैं। पहला protectants, इसका example है थीराम, create a barrier प्लांट एंड बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन, तो ये जो प्रोटेक्टेंट है वो बैरियर का काम करता है। देन इरेडिकेंट्स, इसका एग्जांपल है टिल्ट, रिमूव द पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्शन कोड, जो इन्फेक्शन साइट है वहाँ से ये पैथोजन को रिमूव कर देते हैं। देन सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक, इसका एग्जांपल है कॉन्टैफ। देन बेस्ड ऑन द जनरल यूज, अब फंजीसाइड्स को हम यूज़ के हिसाब से किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। सीड प्रोटेक्टेंट, एग्जाम्पल आप देखते रहिए बाद में इसमें लिखे हुए हैं। देन सॉइल फंजीसाइड, फॉलिएज एंड ब्लॉसम प्रोटेक्टेंट्स, फ्रूट प्रोटेक्टेंट्स एंड ट्री वुंड ड्रेसिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बॉडेक्स मिक्सचर, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी है और इसको हम अपने वीडियो में भी इंक्लूड करेंगे। देन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, कि जो केमिकल नेचर के बेस पर हम किस किस तरह के फंजीसाइड्स बनाते हैं। तो पहला है सल्फर कंपाउंड, जिसके के अंदर सल्फर होता है। देन कॉपर कंपाउंड्स, मरकरी कंपाउंड्स, क्विनॉन्स, एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स, बेंजीमीडेजोल्स, ऑक्सीथिन्स एंड अदर्स। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फंजीसाइड, जो भी फंजीसाइड हम यूज़ कर रहे हैं वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो हाई फील्ड परफॉर्मेंस, यदि हम फंजीसाइड यूज़ ही कर रहे हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई फील्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इनहेरेंट फंजी टॉक्सिसिटी, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, गुड कवरेज होना चाहिए, इनिशियल डिपोजिशन एंड रेजिडुअल इफेक्ट, मतलब उसका इफेक्ट लास्ट लॉन्ग रहना चाहिए। और क्या इसके मेरिट्स होनी चाहिए, लो फाइटोटॉक्सिसिटी, मतलब प्लांट पर वो कम टॉक्सिक होना चाहिए। स्टेबिलिटी इन स्टोरेज, यदि आप उसको स्टोरेज कर रहे हैं फंजीसाइड को तो ऐसा ना हो कि उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाए, तो वो स्टेबल होना चाहिए उसकी जो क्वालिटी है। देन स्टेबिलिटी आफ्टर डाइल्यूशन टू स्प्रे स्ट्रेंथ, जो भी हम स्प्रे कर रहे हैं वो हम उतना डाइल्यूशन लेते हैं कि सिर्फ उससे पैथोजन ही इफेक्ट हो, जो प्लांट है उसको वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो, क्योंकि प्लांट को हमें उसको यूज़ करना है। तो जो उसका डाइल्यूशन के बाद भी उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहनी चाहिए। लो टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन बींग्स एंड कैटल्स, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन बींग्स एंड कैटल्स भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो जो फंजीसाइड है वो लो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए उसकी। चीप एंड ईजीली अवेलेबल, कंपैटिबिलिटी, सिंपल टू प्रिपेयर एंड ईजी टू अप्लाई, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए गुड फंजीसाइड के लिए। देन फॉर्मुलेशंस ऑफ फंजीसाइड्स, तो इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं, लाइक वेटेबल पाउडर्स हो सकते हैं, इसको WP कहेंगे, डस्ट और डस्टेबल पाउडर, ओके। देन इमल्सिफाइल कंसनट्रेशंस EC, ग्रेन्यूल फॉर्म में हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्म्स में फंजीसाइड्स हो सकते हैं, ग्रेन्यूल्स हो सकता है, अलग अलग इमल्सिफाइड कंसनट्रेशंस का हो सकता है, पाउडर फॉर्म में हो सकता है, सस्पेंशन कंसनट्रेट, स्लरीज और वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर फॉर स्लरी ट्रीटमेंट, देन सोल्यूशन हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं फंजीसाइड्स की। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सल्फर फंजीसाइड से। सबसे पहले हम सल्फर बेस्ड फंजीसाइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो सल्फर बेस्ड जो फंजीसाइड्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम एलिमेंट सल्फर। एलिमेंट सल्फर में दो पार्ट्स आएंगे, डस्ट सल्फर एंड वेटेबल सल्फर, और सेकंड होगा लाइम सल्फर। देन ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे जीरैम, फैबम, थीराम, मैनेम, नेबम। तो ये आपको अब सल्फर बेस्ड कंपाउंड, सल्फर बेस्ड कौन कौन से फंजीसाइड्स हैं, इनऑर्गेनिक कौन से, ऑर्गेनिक कौन से हैं, ये सब आपको लर्न करना है।
चलिए सल्फर डस्ट शुड बी वेरी फाइन, पार्टिकल साइज 200 to 300 मैश और 47 to 74 माइक्रॉन्स। नेचुरल सल्फर फ्रॉम ओर इज ग्राउंडेड एंड यूज्ड। वेट इसका क्या होएगा 25 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर रोटरी डस्टर। सल्फर कंट्रोल्स पाउडरी मिल्ड्यूज। सल्फर डस्ट कैन बी यूज्ड एज सीड ट्रीटमेंट फॉर sorghum smut. ST is for the seed treatment. Then wettable surface, formulated at 80% wettable powder. Then इसका TN is for the trade name कि वो मार्केट में किस नाम से मिलती है, तो ये TN है, इसका ट्रेड नेम है थियोविट, कोसैन, माइक्रोसल्फ, अल्ट्रा सल्फर एक्सेट्रा। एंड इसको हम 0.2 से 0.25% के में इसको डाइल्यूशन में काम लेते हैं। और ये क्या कंट्रोल करती है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्रॉप्स। Then lime sulfur that is LS, calcium polysulfide, CaS2. Lime sulfur used as spray, used only in iron or zinc pots. Rock lime, sulfur, water, ये इसकी quantities दे रखी हैं। Method, add water into lime and add sulfur slowly and stir of suspension continue. कलर बिकम गोल्डन येलो। यूज सुपरनेटेंट। डोजेस कितनी है ये दे रखी हैं कि इतने गैलन्स पर इतने गैलन ऑफ वाटर में आपको कोकोरबीट्स वेजिटेबल्स या पीस पर उसको लगाना है। ओके और वुडी ट्रीज के लिए ये 1 से 2 गैलन पर 100 गैलन पर फॉर द वुडी ट्रीज। 1 गैलन इज इक्वल टू कितने लीटर्स हैं, 3.78 लीटर्स होते हैं। तो ये है लाइम सल्फर क्या होती है और इसको हम अलग अलग प्लांट्स पे किस तरह से यूज़ करते हैं। ये तो हो गया इनऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स। नाउ लेट्स सी अबाउट द ऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स। दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ डाईथायोकार्बामेट्स, दैट इज डाईथायोकार्बामिक एसिड के ये डेरिवेटिव्स होते हैं। डाईथायोकार्बामिक एसिड इज मिथाइलेटेड टू अनस्टेबल द फंजीसाइडल प्रॉपर्टी। जिंक, iron are used to stabilize dimethyl dithiocarbamates. Then इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने पहले टेबल में पढ़ा जिराम इज जिंक डाईमिथाइल डाईथायोकार्बामेट, इसका ट्रेड नेम है। ये ट्रेड नेम्स यदि 1-2 के मैं बीच में छूट भी जाते हैं तो आप इनको, ये पूरा आपके पास लिस्ट है और मैं PDF भी आपको दूंगी, तो आप उसमें से जो भी इनके ट्रेड नेम है वो आप लर्न कर लीजिए। तो इसका ट्रेड नेम है कोरोजेट, हेक्सेजियर एक्सेट्रा, यूज एज अ स्प्रे। इसको हम स्प्रे इस रेट पर स्प्रे की जैसे यूज़ करते हैं। और ये कौन सी डिजीज़ कंट्रोल करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देन ऑल्टरनेरिया स्पीशीज़, कॉलेटोट्राइकम स्पीशीज़, रस्ट स्पीशीज़, इन सब के अंदर ये काम आता है। Then फेरबम इज फेरिक डाईमिथाइल डाईथायोकार्बामेट, इसका ट्रेड नेम है फर्मेट या हेक्सफर्ब एक्सेट्रा, यू कैन रीड इट। देन डोजेस दे रखी हैं और ये इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, फोलियर स्प्रे की जैसे। और डिजीज कौन सी कंट्रोल करता है, फंगल डिजीजेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देन थीराम इज टेट्रामिथाइल थायरम डाइसल्फेट, इसका ट्रेड नेम है एरासन या हेक्सेथी, TMTH, TMTD, थाइलेट, थायराइड एक्सेट्रा, एंड इट इज़ यूज्ड एज सीड ट्रीटमेंट। डोजेस दे रखी हैं एज सॉइल फंजीसाइड, मतलब अलग अलग डोजेस हैं कि आपको सॉइल फंजीसाइड के लिए तो इतने किलोग्राम्स पर हेक्टेयर यूज़ करना है, यदि आप सीड के लिए कर रहे हैं तो आपको कितना % यूज़ करना है। डिजीज़ कंट्रोल, डैम्पिंग ऑफ डिजीज एंड स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर। Then Zenab is zinc ethylene bi-dithiocarbamate. Trade name is Indofil Z78 etc. Used as foliar spray. Doses दे रखी हैं। डिजीज कौन सी कंट्रोल करता है, रस्ट, डाउनी मिल्ड्यूज, ऑल्टरनेरिया ब्लाइट, देन लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एंथ्रैक्नोज, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, ये इतनी सारी डिजीजेस के अंदर हम जिनैप को यूज़ करते हैं। Then Manab, it is manganese ethylene bi-dithiocarbamate and it is not available in India. In India इसका क्या सब्सटीट्यूट है, डाइथेन M45, जो कि मैनब प्लस जिंक होता है इसके अंदर। इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन जिनैप, उसको भी हम एज अ फॉलियर स्प्रे यूज़ करते हैं। और ये कौन सी डिजीजेस कंट्रोल करता है, एंथ्रैक्नोज ऑफ टोमेटो, टोबैको, कुकरबिट्स, डाउनी मिल्ड्यूज ऑफ पीज, रस्ट ऑफ पी एंड व्हीट। Then Nabam is disodium ethylene
डाईथायोकार्बामेट एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन इंडिया। इसका ट्रेड नेम है वैपम एंड शिमवैप, यूज्ड एज अ फ्यूमिगेंट फंजीसाइड। इसके डोजेस दे रहा है कि हमें फ्यूमिगेंट फंजीसाइड है तो हमें कितने लीटर्स इसको पर स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर डालना। इट इज़ यूज फॉर द वीड फ्लोरा, फंजाई एंड निमेटोड के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट में ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा बिकॉज ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, तो हम मतलब अलग अलग तरह के जो आपके केमिकल्स हैं उनको कुछ और मेरे ख्याल से 2 वीडियो और बनेंगे इसके, उसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।